You see, we have this IPL and Indian Premier League. I call it a tamasha. It is only commercial, fashion show, drinks. Do you think we should encourage it? नेट जीरो ग्रीन कैंपस, उससे आप क्या समझेंगे? I want to know the legal constitutional basis of prohibition. इंडिया या मेरी है, जो इच्छा हो मैं पीऊँ, जो इच्छा हो खाऊँ. लोगों का कहना है कि इंडिया का जो बांग्लादेश पॉलिसी है वो फेल हो गई. आपका क्या कहना? What is your opinion? Have you heard about cold fusion? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Please sit down. Thank you, sir. Ramjivan, you are interested in cricket. Yes. Have you heard of bodyline bowling ever? Yes. What was it? Sir, were basically bouncers that were tried in Ashes series between Australia and England. When did it happen? When did it begin? Who are the Sir, teams? at the start of the 19th century, when Don Bradman was playing for Australia. 19th century. 20th century, sorry, sir. Okay. When Don Bradman was playing for What Australia. happened? Which were the teams? Were England and Australia, sir. Bodyline. Which teams? England and Australia. England and Australia. Now, you see, we have this IPL and Indian Premier League. I call it a tamasha. It is only commercial, fashion show, drinks. Do you think we should encourage it? Has there been any benefit of IPL? Yes, sir. There are benefits for IPL, especially. Let me know. Especially for the, you can say, the younger generation who are coming in the Bit louder. Sir, especially for the younger generation who are interested in cricket. They are basically, you can say, can I say in something in Hindi? सर वो उससे रिलेट कर पाते हैं उस गेम से, क्योंकि वो एक मतलब फास्ट पेस गेम है और काफ़ी उसमें इंटरटेनमेंट उन्हें मिलता है. साथ ही सर हमारे जो नए क्रिकेटर आ रहे हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है उससे. गुड. वो अच्छे खिलाड़ियों से मिल पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, जो जनरली वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं मिलते. जैसे हमारी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ जो बैटिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है. तो इस वजह से सर जो मेरा मानना है कि सर ये इंटरटेनमेंट तो है ही, साथ ही ये हमारे क्रिकेट को भी फायदा दे रहा है, खासकर जैसे प्रेशर सिचुएशन में खेलना, ये भी हमें. You see, one of the subject service choice you have given excise department. Yes. Now, Bihar imposed prohibition. You understand prohibition? आपने you have given your medium English. अगर आप हिंदी में आपने, इसलिए मैं I am asking about English. You want in Hindi? Sir, it could be better if I had both. Sometime. Hindi is better. यहाँ आपने इंग्लिश दिया था. Sometime I may. बिहार में प्रोहिबिशन लागू किया गया. You understand prohibition? And it has. Now want to know the legal constitutional basis of prohibition. इंडिया या मेरी है, जो इच्छा हो मैं पीऊँ, जो इच्छा हो खाऊँ. How can the state restrict my drinking? Sir, in the. So what are the provisions in constitution justifying this? In the part 4 DPSP, there is the Article 47 that talks about prohibition of liquor and intoxicant drugs that are harmful for health. So one is that, and other, sir, I am not able to recall at present. Now, what has been the effect of provisions? Should one say it is having causing a lot of revenue loss? सरकार को बहुत पैसे की हानि हो रही है, फिर भी क्यों सरकार इस पर लागू करना चाहती है? क्या इसके पीछे तर्क हो सकते हैं? आप समझते हैं लागू करना चाहिए या इसको खत्म कर देना चाहिए? सर, इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि बताइए. बिहार में एक तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस का भी रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं लिक्वर एक रोल प्ले करता है. और साथ ही सर ये हमारे नए जनरेशन के लिए, जो यूथफुल जनरेशन, चूँकि बिहार में अबाउट 56% पॉपुलेशन जो है वो 15 साल से 49 साल के बीच की आबादी है. तो मेरा मानना है कि अगर उन्हें हमें एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ाना है तो लिक्वर जैसी चीज़ों से उन्हें दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे ना केवल हेल्थ को प्रॉब्लम होता है बल्कि उससे इन जनरल भी हमारी एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है, वर्किंग एफिशिएंसी वगैरह पे भी. तो मेरा मानना है सर ये होना चाहिए. आप स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री रहे हैं. यस. टेल मी दैट हैव यू हर्ड अबाउट कोल्ड फ्यूजन? केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं. कोल्ड फ्यूजन ये क्या हो सकता है? कोल्ड फ्यूजन सर राइट नाउ आई एम नॉट. फ्यूजन और फिशन में फर्क बताएंगे? व्हाट इज फ्यूजन एंड व्हाट इज फिशन?
सर फ्यूजन इज दैट व्हेन यू दो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं सर, वो जब आपस में मिलते हैं एक लार्जर मास की या हाइयर मास की पार्टिकल को बनाते हैं, उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। जैसे हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। और सर जैसे हाइड्रोजन बम है जिसमें फ्यूजन पेपर करता है, जहाँ पे एक पार्टिकल जो है कई छोटे छोटे पार्टिकलों में टूट जाता है और जो मास डिफरेंस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। ठीक है, थैंक यू जनरल साहब प्लीज। नालंदा के बारे में बताएं, रूइंस के बारे में पहले, सर और नालंदा, फिर उसके बाद इनॉग्रेशन के बारे में बताएं। सर नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी एशियन टाइम में, उसे कुमार गुप्ता ने बनवाया था, जो गुप्ता शासक थे। और वो यूनिवर्सिटी से दुनिया भर के कई लर्नेड पर्सन उस यूनिवर्सिटी को विजिट किए, जैसे विंगसेन हर्षवर्धन के समय आए थे। और वो एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, एक एजुकेशन हब थी इंडिया की उस समय की। और अभी हाल में जो इनॉग्रेशन हुआ है सर, वो नालंदा की जो यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, खासकर वो नालंदा जो एशियन यूनिवर्सिटी थी उसके स्ट्रक्चर, उसकी जो रूइन है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाई गई है। और काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी भी उसके अंदर दी गई है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, स्पोर्ट्स के लिए भी वहाँ बनाया गया है, और नई हॉस्टल्स बिल्डिंग भी वहाँ बनाए गए हैं। तो नालंदा इस पर सर मुझे इतना इसके बारे में। उसको क्या हमने पुरानी वाले की जो रूइंस थे, क्या उसको हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया? यस सर, वो कब किया गया वो? यूनेस्को की हेरिटेज साइट लिस्ट में है सर। कब किया गया वो? सर ध्यान होगा आपको? एग्जैक्टली सर मुझे ईयर नहीं पता है, मैं गेस कर सकता हूँ उसको। ओके। एक शब्द आया है नेट जीरो ग्रीन कैंपस, नेट जीरो ग्रीन कैंपस, उससे आप क्या समझेंगे? सर नेट जीरो का मतलब हुआ कि ओवरऑल जो एमिशन होगा CO2 का, उसको हम या जितना कर रहे हैं उसको उतना ही हम उसको एक तरीके से या कार्बन कैप्चर करके या किसी अदर प्रोसेस से उसको इन्वायरमेंट से हटा भी रहे हैं। तो वो नेट जीरो का हुआ। और ग्रीन हो गया सर कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजी या अदर चीज़ें हम वहाँ उपयोग कर रहे हैं वो कम से कम मतलब इमिशन करे, इसके ऊपर हमारा फोकस है। क्या क्या ऐसी नई चीज़ें लेके आए हैं जिससे कि उसको ज़्यादा एफिशिएंट किया गया? इसके बारे में मुझे जानकारी। सोलर सिस्टम के बारे में यस सर। है वापस सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम नालंदा में लगाया गया? सर इसकी जानकारी मुझे। अच्छा, व्हाट अबाउट STPs एंड अदर थिंग्स, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट? यस सर, वाटर, तो ऐसा क्या क्या किया गया वहाँ पे? सर एक तो सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो वेस्ट को ट्रीट करने के लिए है, और एक सर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है, ताकि जितना भी बारिश वगैरह का या कुछ पानी हो तो उसको हम एकत्रित कर सकें और उसका उपयोग कर सकें दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। रीयूजिंग द वाटर, ये रीयूजिंग द वाटर, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग इट। ओके। तो ये जो विचार कब आया था कि इसको हमको यूनिवर्सिटी बनाना वहाँ पे इसको? सर इसकी प्रस्तावना जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2006 में बिहार असेंबली में रखी थी, और 2007 में बिहार सरकार ने इसके लिए एक बिल पास किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी बिल नाम से। और आई थिंक 2009 और 10, आई एम नॉट, पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास किया गया, बाकायदा उसे नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूट का दर्जा देकर। और आई थिंक 2014 और 16 में ये शुरुआत हुई। अमर्त्य सेन पहले वहाँ के वाइस चांसलर थे, जो नोबेल प्राइज विनर रहे इकोनॉमिक्स के। ओके, थैंक यू। आपने लिखा है टू मच टेंशन समटाइम्स, तो आप यू टेल अस व्हाट डू यू डू टू ओवरकम दिस वीकनेस? सर अभी इसी वक्त मैं गहरी सांसें ले रहा था, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकूं, खुद को थोड़ा ठंडा रख सकूं। और जनरली सर मैं भजन वगैरह सुनता हूं या मेडिटेशन कर लेता हूं थोड़ा देरी बैठकर, ताकि अपने आप को थोड़ा ठंडा कर सकूं, थोड़ा काम डाउन कर सकूं, चीज़ों को थोड़ा समझ के आराम से समझूं फिर उसके बाद। और सर जो मैंने स्पोर्ट्स अपनी हॉबी लिखी है क्रिकेट, तो अदरवाइज आई गो टू प्ले क्रिकेट एंड जस्ट पास एवरीथिंग ऑफ। तो इस बार की जो बजट आई, इसमें बिहार को कुछ स्पेशल पैकेजेस दिए गए। वाज इट अंडर स्पेशल असिस्टेंस या स्पेशल
ये स्टेटस कैटेगरी? सर इट वाज स्पेशल असिस्टेंस हाँ, because as per the recommendation of 14th Finance Commission, I think they have scrapped the special category status. अच्छा। So ये एक स्पेशल असिस्टेंस के रूप में दिया गया है बिहार को। तो tell us something about it. What were the major highlights of this special package for Bihar? सर फर्स्ट वाज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर था, जैसे एक्सप्रेसवे बनाने का, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, एंड देन दरभंगा एंड गया एक्सप्रेसवे, पटना एंड आई थिंक बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे वाज देयर। उसके अलावा? इसके अलावा सर हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, महाबोधि टेम्पल जो है सर, उसे महाबोधि टेम्पल है, उसके बाद सर जो विष्णुपद टेम्पल है गया हम सर, उसे वाराणसी के तर्ज पर डेवलप करने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि हम उसे, जैसे वाराणसी में जो कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके हिसाब से विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाने का उसमें प्रोविज़न है। सभी मुझे इतना याद है इसके बारे में। और एक फ्लड कंट्रोल के लिए कुछ भी यस, किया गया है? फ्लड कंट्रोल के लिए भी दिया गया, बट आई एम नॉट एबल टू। यू आर नॉट अवेयर ऑफ। ऑलराइट। तो ये जो फ्लड का जो प्रॉब्लम है दैट वी फेस इज लिंक टू नेपाल, बहुत लोग का ये कहना है। कुछ लिंकेजेस के बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है इंडिया नेपाल के बीच में कि हम लोग कोई कोऑपरेशन नहीं हो पा रही? व्हाट इज द इशू? सर इसमें एक कोऑपरेशन की बात पे सर जो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, वहाँ थोड़ा पॉलिटिकल डिसस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी कुछ सरकार रहती है, तुरंत फिर वो चेंज हो जाती है, तो डिप्लोमेटिकली उस टाई को सस्टेन करना, उस डायलॉग को सस्टेन करना लगातार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और रही बात सर फ्लड की, तो चूँकि हमारे यहाँ जितने भी नॉर्दर्न रिवर्स हैं, उनका ओरिजिन जो है वो नेपाल में है, और नेपाल के कैचमेंट एरियाज़ में है, जहाँ से वो ढेर सारी वर्षा के पानी को लेकर मतलब हमारे यहाँ आते हैं, तो उसे सर एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये है कि सर जो जिसे हम हिंदी में गाद कहते हैं, जो रिवर के अंदर की जो सिल्ट्स होती है, उसको भी रेगुलर इंटरवल पे हटाना भी एक ज़रूरी है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। फ्लड कंट्रोल में सर ये चीज़ है। और So do you think it is a failure on the part of Indian diplomacy कि we have not been able to convince Nepal that they should cooperate? हमारा neighborhood policy, has it failed? सर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी नेबरहुड पॉलिसी इसमें फेल हुई है, क्योंकि जो पहले जो डैम बने, जैसे गंडक डैम बना या कोसी बैराज वगैरह बना है, वो सब आपस में कोऑपरेशन के तहत ही बना है। तो मैं उसको डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं कहूँगा इस हिसाब से कि हम उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इट्स मोर दैट देयर इज़ सम टाइम, कभी कभी आपको समय देना पड़ता है चीज़ों को सेटल होने के लिए। और डिप्लोमेसी में सर ऐसा है कि जितना ज़्यादा हम बाहर सोचते हैं, उससे ज़्यादा अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इट्स मोर अबाउट व्हाट इज़ गुड फॉर आवर डोमेस्टिक पॉलिसी, तो उस पर भी हमें ध्यान देते हैं। और सर अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अभी बांग्लादेश में कुछ समस्या हो रहे हैं, लोगों का कहना है कि इंडिया का जो बांग्लादेश पॉलिसी है वो फेल हो गई। आपका क्या कहना, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर मेरा मानना है कि इंडिया ने इसमें बैलेंस पोस्चर बनाए रखा, जो भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई उसमें, क्योंकि मोर देन द पॉलिटिकल रिलेशन, आपको एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एक गवर्नमेंट का दूसरे देश के लोगों में जो विजडम है उसको बनाए रखना भी ज़्यादा जरूरी, क्योंकि पॉलिटिकली चीज़ें चेंज होती रहती है, बट पीपल आर गोइंग टू स्टे देयर। सो वी टेक एड मेजर और बैलेंस अप्रोच कि हमें उनके इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हो रही है उसको क्या भारत India has been interfering in the internal affairs? No sir, I am not saying that we are interfering. We are just saying that कि जो चीज़ें वहाँ हो रही है उस पर हमने नज़र बनाए रखी, जो मेजर रिस्पॉन्स हम दे सकते थे हमने दिया, और हमने उसमें इंटरफेयर करने की बाहर से ज़रूरत नहीं सोची। जैसा हमने, चूँकि 1971 में ज़रूरत था कि हम बाहर से इंटरफेयर करें वहाँ पे, लेकिन इस बार ऐसी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती थी जो हमें इंटरफेयर करनी चाहिए। थैंक यू। आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।